Welcome back, class 9th. Today, this is the second part of History, Chapter 3, Nazism and Rise of Hitler. We have discussed the story of Helmut, a German boy, 11-year German boy, and also we have discussed about the German cruelty, that they killed almost 10 million people as they wanted to make Germany a superpower in the world, and second thing that they wanted a particular race only should stay in Germany, so that all should become the followers of Hitler, and those who opposed him should be killed. Now today let us discuss how Weimar Republic came into existence. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War from 1914 to 1918. Again, let's recall, in First World War, there were two main powers, Central Powers and Allies. In Central Powers, GAT, three countries were there named GAT. G for Germany, A for Austria, and T for Turkey were the Central Powers. And Allies were BFR, Britain, France, Russia, and after that US also joined. And when US joined Allies power, then only that First World War came to a turning point, and ultimately Allies won the war, and Central Powers were defeated badly. First, when all joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. पहले जब वॉर जब बिगिन हुआ था तो सबने यही सोचा कि सबको बहुत जल्दी से जीत मिल जाएगी, बट slowly they realized that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Because जब वॉर होता है तो कंट्री के सारे resources like manpower, like all weapons, then all money to buy weapons and to arrange all the facilities for fighters, those who are fighting in the war, especially army people. So eventually draining Europe of all its resources, Germany made initial gains by occupying France and Belgium. पहले जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, मींस अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ये लग रहा था दैट जर्मनी वुड विन. हाउएवर the allies strengthened by US entry in 1917, but अचानक से यूएस की एंट्री हो गई इस वर्ल्ड वॉर में, और फाइनली यूएस की एंट्री के कारण जो पूरा वॉर था वो उसने एक टर्निंग पॉइंट लिया, एंड दे डिफीटेड जर्मनी एंड सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918. सो द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी. अब इंपीरियल जर्मनी क्या है, मीन्स जर्मनी में जब पहले किंग का जो रूल हुआ था, ओके, तो जो उनकी जब डिफीट हुई, and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. Abdication means to give up the rule. So when emperor gave up the rule, then other all parties of Germany they got an opportunity to make a parliament in their country. So National Assembly met at Weimar. तो अब क्या हुआ कि एक वाइमर एक प्लेस था जर्मनी में, एक शहर था, वहाँ पे सब लोगों की means all political parties assembled together and established a democratic constitution with a federal structure. कि भाई बहुत अब किंग के रूल से अब बहुत तंग हो चुके हैं, तो अब हमें एक जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहिए, दैट वुड बी डेमोक्रेटिक. देन deputies were now elected to the German parliament और रिश्टैग. जर्मन पार्लियामेंट को रिश्टैग कहते थे, जैसे हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट है उसको संसद कहते हैं, तो इसी तरह से जर्मन पार्लियामेंट को रिश्टैग कहते थे. On the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. So there also universal adult franchise was given including women. This republic, however, was not received well by its own people.
largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of First World War. जब First World War हुआ तो जर्मनी जब डिफीट हुआ तो उस पर कुछ restrictions लगा दिए गए. Okay, terms and conditions लगा दी गई. The peace treaty at वर्सेल्स विद द एलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस. तो जब वर्सेल्स एक प्लेस था जहाँ पे कि पीस ट्रीटी जब साइन हुई कंट्रीज के बीच में, क्योंकि वॉर होता है तो वॉर के बाद में जब आपस में वापस जब सेटलमेंट होता है, सारे जब डिस्प्यूट्स जब सेटल होते हैं तो क्या होता है कि आपस में कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज की जो ऑफिशियल्स हैं वो मिलके और एक जब कॉन्फ्रेंस करते हैं दैट इन फ्यूचर दे विल नॉट फाइट लाइक दिस and they will maintain peace in future. So इस तरह से एक पीस ट्रीटी साइन हुई. तो वहाँ पे उस समय क्या था, जर्मनी पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग और हार्श उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी थी. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जर्मनी ने जहाँ जहाँ उसकी कॉलोनीज बनाई थी अदर कंट्रीज में, तो जर्मनी ने वो लॉस्ट हो गई. मीन्स जर्मनी को खोनी पड़ी, छोड़नी पड़ी. A tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. अब कॉलोनीज तो छोड़ी और उसके साथ साथ में इतना सारा, जैसे 13% उसकी टेरिटरी दी. अब जैसे इस मैप में देखते हैं दैट 13% टेरिटरी जो है वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के पास चली गई. See here in this map, the area which is shown by the pink color, that land was taken from Germany. तो इतनी land जर्मनी के पास से इन countries के पास चली गई, पोलैंड, लिथुआनिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. और उसके साथ साथ उसका जो 75% ऑफ जो आयरन था, जो आयरन के जो स्टॉक था, तो माइंस जो थी आयरन की, उसको 75% जो राइट होगा अब वो इन कंट्रीज का होगा. एंड 26% ऑफ इट्स कोल. तो ये बहुत बड़ा एक नेचुरल रिसोर्सेज का परसेंटेज था जो कि जर्मनी को दूसरी कंट्रीज को देना पड़ा था. द अलाइड, बिकॉज वो हार गई थी, द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर्स. ठीक है, उसको जो मिलिट्री जो थी वो भी उन्होंने ले ली थी, है ना, जिससे इनकी पावर और वीक हो गई थी. मींस इनके पास अब कोई पावर बची नहीं थी. द वॉर गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर्ड. और फिर बाद में उसका जो वॉर का जो गिल्ट क्लॉज आया कि ये सारा का सारा जो फॉल्ट था वो केवल और केवल उसके लिए जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया. एंड कि जो भी वॉर के वजह से जो डैमेज हुआ है और अलाइड कंट्रीज जो सबको जो भी लॉस हुआ है तो उसके लिए जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है. जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड. अब पाउंड जो थी वो यूके की करेंसी थी और जर्मनी की करेंसी तो मार्क थी. ठीक है, आप यू जस्ट इमेजिन इट एज इंडियाज करेंसी इज रुपी बट यूएस करेंसी इज डॉलर. सो सपोज इंडिया पे अगर कोई वो कंपनसेशन वो लगाया जाए तो इंडिया को डॉलर्स में कंपनसेट करना है. तो इसी तरह से जर्मनी को जो पाउंड्स में 6 बिलियन पाउंड्स, दिस साइन इज फॉर पाउंड, सो 6 बिलियन पाउंड में कंपनसेशन करना था. ठीक है, इतनी टेरिटरी, 75% आयरन, ठीक है, 26% कोल, ये सब देने के बाद में द अलाइड आर्मी ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच Rhineland for much of the 1920s. See here, again see here in this map, this area shown, this is Rhineland. So this area was again occupied by allied armies. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. But अब जो वाइमर रिपब्लिक जो बना कि जो वाइमर में जो पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल किया और एक नया रिपब्लिक बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी, जर्मनी के जो पीपल थे, तो वहाँ उन लोगों ने वाइमर रिपब्लिक को एक्सेप्ट ही नहीं किया. उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल
ठहराया कि ये जो वर्सेल्स की जो ये ट्रीटी थी, जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें जो जर्मनी का इतना सारा पार्ट उसे छोड़ना पड़ा था, तो इसके लिए उन्होंने वाइमर रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। बिकॉज जो पीस ट्रीटी साइन करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ही वो एग्री हुए थे, तो जर्मनी की जो पब्लिक थी वो उनको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानती थी। तो अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या हुए। The war has had a devastating impact on the entire continent, both psychologically and financially. From a continent of creditors, Europe turned into one of the debtors. Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. In this First World War, all European countries were fighting with each other. So, war had a devastating, means very bad impact, very disastrous impact on the entire continent. Okay, both financially and psychologically. Then, previously, means before the war, Europe was known as creditor, means Europe used to give loan to other countries, but it became a debtor. ठीक है, जो लोन देता था अब वो लोन लेने वाली कंट्री कॉन्टिनेंट बन गया था, बिकॉज सारी कंट्रीज की हालत खराब हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर पब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर, और जो न्यूली मेड जो वाइमर रिपब्लिक था उसको ओल्ड एम्पायर के जो भी पेमेंट उसको सारे करने थे। द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर, guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. और अब कोई एक नया जो पहले इंपीरियल जर्मनी था जहाँ पे किंग का रूल था और अब वो वहाँ पे रिपब्लिक आया है, मीन्स वहाँ पे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है और अब उस पर फाइनेंशियली इतना अगर ज़्यादा बर्डन आ गया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, दोज हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circle. जो लोग जैसे सोशलिस्ट, कैथलिक्स या जो डेमोक्रेट्स थे जो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, तो वो कंजर्वेटिव्स जो थे उनका टारगेट बने। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स, और उनका मजाक बनाते थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहते थे, बिकॉज उन्होंने क्राइम किया था। जर्मनी की जो लैंड को दूसरे लोगों को, दूसरी कंट्रीज को दे दिया था, जर्मनी के जो रिसोर्सेस थे उनको दूसरी कंट्रीज को दे दिया था, ठीक है। फिर इतना बड़ा कंपनसेशन पे जो इम्पोज किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ वाइमर रिपब्लिक के कारण हुआ था। सो द कंजर्वेटिव पीपल ऑफ जर्मनी वर नॉट हैप्पी एंड दे mockingly called the Weimar Republic as November criminals. Mockingly means mazak mein. The mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s, as we will soon see. The First World War left a deep imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. अब वॉर के बाद में सोल्जर्स जो थे वो सिविलियन से भी मीन्स उनका ऊपर रैंक था, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। देन पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, कि जो कंट्री के मैन हो वो कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो और मैस्कुलाइन हो। द मीडिया ग्लोरिफाइड ट्रेंच लाइफ, glorified means praised, so media praised trench life as military people, army men were living in trenches basically, but the truth was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with rats feeding on corpses. But truth ये था कि जो soldiers थे वो बहुत ही miserable life जी रहे थे इन ट्रेंचेस में, एंड दे वर ट्रैप्ड विद रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। जो सैनिक मर चुके होते थे
कॉर्पसेस मीन्स जो उनकी लाशें होती थी, तो उन पे चारों तरफ उनको रैट्स मीन्स उनको चूहे कुतर रहे होते थे, एंड दे वर लिविंग इन दोज ट्रेंचेस ओनली. दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग. Enemy shelling means दुश्मन की गोलीबारी. So they faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere. अब यहाँ पे पब्लिक के बीच में एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा और जो नेशन का जो ऑनर था उसको वापस लाना चाहती थी वहाँ की पब्लिक. While popular support grew for conservative dictatorships that had recently came into being, और because जो conservatives और कंजर्वेटिव्स जस्ट ऑपोजिट थे जो वाइमर रिपब्लिक के जो डेमोक्रेट्स थे और सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, इनसे कंजर्वेटिव्स टोटली डिफरेंट थे. नाउ पब्लिक सपोर्ट started raising for conservatives basically. Democracy was indeed a young and fragile idea. Fragile means delicate. So democracy was indeed a young and delicate idea which could not survive the instabilities of interwar Europe, and ultimately the support for conservatives and the dictatorship of their conservatives raised between people. Now the next topic is political radicalism and economic crisis. Now in next video we will discuss how this revolutionary uprising came in the political conditions of Weimar Republic and which type of economic crisis they faced. This we will discuss in our next video. Till then, goodbye, stay safe.